Hello everyone. In this video, we will be covering all the questions of bills of exchange from all the revision test papers from May 2018 to till here June 2023 till this attempt. Okay. Now, तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है? From May 2018, the question is check. Mr. B accepted a bill for 10,000 drawn on him by Mr. A. It means Mr. A is the drawer. On 1st August 2017, okay, for 3 months. This was for the amount which B owed to A. ठीक है भाई, B is supposed to pay some money to A, so A drew a bill upon B. A drew a bill means A wrote a bill, will send to B, B will accept the bill, B will sign the bill, then he will send the bill back to A. ठीक है, चलो. On the same date, Mr. A got the bill discounted at his bank for 9,800. देखो, इसमें सबसे अच्छा क्या होगा कि जैसे जैसे स्टेटमेंट जाता है ना वैसे वैसे जर्नल एंट्री लिखते जाओ तो क्या बहुत इजी हो जाएगा. व्हाट विल बी द फर्स्ट जर्नल एंट्री? ऑन 1st August 2017 August 1st bill due by A, so you will write here in the books of A. Just read this, okay? Prepare journal entry in the books of Mr. A. So in the books of A, first entry we will write for our first statement, that will be bills receivable. भाई A को तो पैसे मिलेंगे ना, bills receivable account debit. किससे रुपए मिलेंगे? B से to B. तो B ने अभी क्या दे दिया है? देखो, B से पैसे मिलने थे, अब B ने हम लोग को बिल्स रिसीवेबल दे दिया. ठीक है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी. अगर B हमें कैश देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी. B हमें चेक देता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी. B ने हमें बिल्स दिए हैं तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B. B ने हमें पेमेंट कर दिया. बात समझ में आ गई? B का अकाउंट क्लोज हो जाएगा इस एंट्री के साथ. ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. हाउ मच? 10,000 and 10,000. Simple. After that, what is the next statement? Next statement is on the same date. It means on the same date means August 1 only. Mr. A got the bill discounted at his bank for 9,800. बात समझ में आ गई? वो 10,000 रुपीज का बिल लेकर ए महाशय बैंक गए और उन लोगों ने वो बिल डिस्काउंट करवा लिया. कितने रुपए मिले? 9,800. इट मीन्स डिस्काउंट हाउ मच? 200. बात समझ में आई? तो बैंक अकाउंट debit. How much money we received? Who are we? We are A, okay? Bank account debit 9,800. Discount account debit 200. 2. What have we given to the bank? Bills. Okay, तो bill receivable था हमारे पास, we have given it to the bank. Bills receivable 10,000. Simple. After that, on the due date means it was for 3 months. So from August, first tell me what will be the due date? 3 months na? From August to September, October 1, then November 1. Okay, 1 November plus 3 days of grace. It means it will be 4th November. Okay, so they are saying that on the due date, B approached A for renewal of the bill. Okay, this is the case of renewal of the bill. Mr. A agreed on the condition that 2,000 be paid immediately along with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and that for the remaining balance B should accept a new bill. देखो, B क्या बोल रहा है? On the due day, A told B that कि भाई B बोल रहा है भाई मेरे पास तो रुपए नहीं है. On 4th November B saying I do not have any money. Okay, he is supposed to pay how much? He is supposed to pay 10,000 rupees. Okay, he is saying hey listen, no, you are my friend, no, can we please renew the bill? Can you give me extra time? It is basically he is asking for extra time. Okay, so A is telling B, see, we can renew the bill only on the condition that you will pay me 2,000 rupees immediately. Okay,
and from the 10,000, if you will pay me 2,000 immediately, what will be the remaining amount? The remaining amount will be 8,000. He is saying along with the interest on the remaining amount, it means remaining amount is 8,000. On that 8,000, if you promise me to pay 12% per annum interest for the 3 months, then I can give you the new bill for another 3 months. Understood? So that only we will write here. On November 4, see, if you have any doubts in the concepts other than this RTP, if you have any doubts, then you can go and check our series. We have entire series on bills of exchange. Okay, there we have learnt in detail renewal, accommodation and all those things, promissory note, all those things are discussed and the link is already uploaded. You can go and check. Okay, now I think it is might be series 6 if I am not wrong. November 4, we will write here, because B is not paying the money to the bank. So remember this, because I went to the bank and I discounted the bill from there. So what is happening here basically, check, understand this. A draw the bill on B, B accepted the bill and B gave the bill after acceptance back to A. Then A went to the bank to discount the bill. Okay, so now on 4th November, bank goes to B again, but B is saying to A, can we please renew the bill, because he do not have the money. So he is asking him to renew the bill. Then A and B agreed to renew the bill. Okay, but think about bank. Bank is saying I want my 10,000. No, because I have discounted the bill for A. So bank will go back to A and tell A that B is not paying the money. So who will pay? Obviously A will pay the money. Understood? क्योंकि बैंक तो अपना पैसा लेके रहेगा. अब A के हिसाब से सोचो, A has to receive 10,000 from B and A has to pay 10,000 rupees to the bank. So the entry will be, A will write, he has to receive 10,000 from B, so B account debit, and he has to pay to bank, so to bank account, because from his bank account the money will be deducted. No, 10,000 10,000. बात समझ में आई? आगे बढ़े. चलो भाई, उसके बाद on November 4 itself, what is happening? We told B that you have to pay us interest also. So B account debit. Interest is our income, to interest account. How much money? On 8,000, 12% interest for 3 months. So it will be 240. We told B that you have to add this 240 also in the new bill. Understood? Not in the new bill, sorry, you have to pay it right now. So what two things he will be paying right now? Again, on the November 4 itself, we will receive cash from B, cash account debit, and we will receive new bill from B, bill receivable. देखो यही हमारी फर्स्ट एंट्री भी थी, bills receivable account debit. From whom are we receiving? From B. Okay, understand this thing. I debited B with 10,000 because I have to take 10,000 from him, because this is the original amount. Then again I debited B because I have to receive interest amount from him. So totally I am supposed to receive from B how much? 10,240. Okay, how is he paying us 10,240? First we will write here, pay us 10,240. How will he pay? We told him you have to pay immediately how much? He has to pay us immediately 2,000 and the interest. So 2,000 is interest, sorry, 2,000 is the money from main amount and 240 is interest. So totally 2,240. And because the original bill was of 10,000 and he is giving us the new bill for how much will he give? Because 2,000 he paid in cash. So the remaining is 8,000. And your journal entry will tell you automatically. बात समझ में आ गई? चलो भाई, उसके बाद अब after November 4 what is happening? B should accept. These arrangements were carried out on 31st December 2017. B became insolvent and his estate paid 40%. Oh my God. See, now after November 4, from November 4, he gave him the new bill. On 31st December, he is saying B became insolvent. अब B के पास पैसे ही नहीं है, insolvent हो गया, भिखारी हो गया, ठीक है. And his estate paid 40%. मतलब उसके पास जो भी संपत्ति थी, जो भी उसके पास पैसे थे, his estate is paying 40%. Means if anybody is asking 100 rupees from Bino, he can pay only 40 rupees. This is the meaning of this. Okay, prepare journal entry. So how much money we had to take from him? 8,000.
on December 31, because our bills, whatever it was of 8,000 rupees, it has no value now because B gone insolvent. So I will write here B account debit to bills receivable, because that bill is waste now. So I am saying that bill is waste again, and I will take cash only from B. Okay, B account debit to bills receivable 8,000. So I tore that bill receivable and put it in the dustbin. Now I will go to B's house and I will tell him give me the money. Okay, so see, now I am going to the B's house on December 31st, and he is telling me I can pay you only 40% amount. You want to take, then take, or else go. We will take or not? Obviously we will take. So cash account debit 40% of 8,000. 4 8s are 32. Remaining amount will become our, tell me, bad debt. Out of 8,000, 40% we received, it means 60% gone, 4,800 to B's account 8,000. बात समझ में आ गई? अरे एकदम आसान सी बात थी, है ना? आगे बढ़े, देखो क्या कैसे चल रहा है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन वापस देख लो. We received bill from B for 10,000. Okay, then who are we? We are A. Okay, then we went to the bank and got that bill discounted. On November 4th, on the due date, B is saying please renew the bill. So okay, we are paying the bank 10,000 rupees and we are writing in our books again B has become our debtor again. Okay, now we told B that you have to pay us interest also, so B account debit to our interest income. Okay, B is our debtor, B has to pay 10,240. After that, what is happening? B is saying, see, we told B that you have to pay interest in cash and you have to pay 2,000 rupees also from the original amount. Then how much money is pending? 8,000. For this 8,000, B has given us the new bill. This is our new bill receivable for 8,000. Okay. On December 31st, B is saying I do not have any money. So this bill receivable is of no use. So because when we took bill receivable from him, we wrote bill receivable to B. Now it is of no use bill receivable for us. So we will do the reciprocal of this entry. It will become B account debit to bills receivable. बात समझ में आ गई? Now on December 31st, B again become our debtor in our books. Debtor, it means we have to take money from him. We went to his house and he is telling us I can pay you only 40% and your remaining balance is your bad debt. Clear? Story समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप सीरीज जाके चेक कर सकते हो. मुश्किल से 15 मिनट्स 20 मिनट्स वीडियोज़ हैं, 4 या 5 वीडियो होंगे. ठीक है, they all are short in English only, so it will be easy for anybody to understand. Okay, now November 2018, check what's the first question. There is only one question in each RTP for bills of exchange. Okay, just for your information. Prepare journal entries for the following transaction in K. Katrak's book. First is Katrak's acceptance to Basu for 2,500 was discharged by a cash. Katrak's acceptance, it means Katrak is who? He is the drawee. Okay, because he has accepted the bill, it means bill is liability for him. We are talking about bills payable. His acceptance to Basu for 2,500 was discharged by cash payment of 1,000 rupees. It means Katrak had a bills payable of 2,500, but he is making a cash payment of 1,000 rupees and a new bill for the balance plus 50 rupees for interest. Katrak क्या क्या दे रहा है? Bills payable देना था 2,500 का और interest देना था 50 rupees का. ठीक है, these two are the liabilities for Katrak. Now we are Katrak only. Okay, in the books of cat बोल दूं क्या? In the books of Katrak, देखो क्या क्या देना था? We have to pay bills payable of 2,500 and we have to pay 50 rupees of interest. This is expense for us. Okay, discharged by a payment of 1,000 rupees we are paying in cash and for the remaining amount we are giving the new bill. देखो बहुत easy है. What are the two liabilities we are paying? Sir, we are paying bills payable and we are paying interest account. We are paying interest. What interest account here? Right? Bills payable was how much? 2,500.
interest was how much? 50. How are we paying? We are giving them cash, so right here 2 cash. Then how we are paying? We are giving them the new bill, so 2 bills payable. Sir, bills payable account debit, bills payable account debit, credit. Sir, this is old bills payable, this is new bills payable, okay? So there will be the remaining amount 1550. बात समझ में आ गई? अरे आसान है एकदम. चलो आगे क्या बोल रहा है? G Gupta's acceptance for 4,000 which was endorsed by Katrak to M Mehta. Okay, we have endorsed it to somebody who accepted for us. G Gupta, okay, was dishonored. Oh my god. See, we are drawer in this case, okay, and drawee was G Gupta's. He accepted the bill, but we endorsed it to M Mehta, okay. Now it was dishonored, okay. Now Mehta paid 20 rupees noting charges. Bill withdrawn against check. What does it mean? Now understand, we are supposed to pay M Mehta and we have to receive money from G Gupta. So understand, we have to receive money from Gupta, it means he is our debtor. We have to pay to Mehta, it means he is the creditor. So right here, G Gupta account debit, we have to receive money, so he is our debtor. We have to pay to Mehta 4020 4020 4020. अरे बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ूं क्या सर? हाँ सर आगे बढ़ो, ठीक है. क्या है? डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2000, रिटायर्स अ बिल ऑफ 2000. ठीक है, देखो यहाँ पे ये तो हुआ, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉल की भी एंट्री पास करनी होगी ना. बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक. सो व्हेन बिल इज विड्रॉन अगेंस्ट चेक, it will have another entry here. See, this is also very very important. Bill withdrawn against check means when it was due, we have given him the check, okay. So G Gupta to Mehta, so we will write here M Mehta account debit to against check, so to bank account 4020 4020. ठीक है. अच्छा, डी दलाल से बात कर लेते हैं. डी दलाल रिटायर्स अ बिल 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतराक फॉर 10 रुपीज डिस्काउंट, ओके. डी दलाल, सी वी ड्रॉन अ बिल ऑन दलाल. नाउ ही इज सेइंग, सी द बिल इज 2000 रुपीज, I want 10 rupees discount and I will pay only 1990. We are Katrak, okay, so we will give him the 10 rupees discount. So we are receiving how much? 1990. So right here, bank account debit 1990, discount account debit 10 rupees to D Dalal. How much? Sorry, not D Dalal, bills receivable, bills receivable account 2000. बात समझ में आ गई भाई? बिल के बदले में 1990 रुपीज मिले. बात समझ में आई? अगला पॉइंट क्या है? Katrak's acceptance to Patel for 5000 was discharged by Patel Modi's acceptance to Katrak for a similar amount. Okay, see, देखो क्या हुआ ना. Katrak's acceptance to Patel, it was Patel was drawer here and he was the drawee, was discharged by Patel Modi's acceptance. Patel Modi's acceptance means he has become the drawee now. To Katrak means Katrak has become the drawer. देखो क्या हुआ होगा, एकदम सेम टू सेम ट्रांजैक्शन हुआ होगा. जैसे फर्स्ट Katrak was supposed to pay to Patel for some transaction and Patel was also supposed to pay Katrak for some transaction, okay. So they are saying it was discharged by Patel Modi's acceptance. जब भी ऐसा कुछ आए ना, इसकी फिक्स्ड एंट्री है. देखो बताता हूँ फिक्स्ड एंट्री क्या है. Your bills payable will also get cancelled, your bills receivable will also get cancelled. So bills payable account debit to bills receivable
5,000 5,000। बात समझ में आ गई, एकदम इजी। आगे बढ़े, चलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, प्लीज़ उसको एकदम ध्यान से करना। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, May 2019 क्वेश्चन देखो। रीता ओड 1 लाख रुपीज टू सिमरन, ओके। रीता ओड मतलब रीता इज सपोज टू पे टू सिमरन, ओके। On 1st October 2018, Rita accepted a bill drawn by Siriman for the amount at 3 months. Rita accepted the bill, okay. अच्छा पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिरिमन, तो लिख लो भाई। इन द बुक्स ऑफ सिरिमन क्या लिखोगे भाई, आप लोग लिखोगे बिल आया, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम होम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सिरिमन, ठीक है। सॉरी, टू रीता, वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ सिरिमन, नो, टू रीता। हाउ मच, 1 lakh on 1st October 2018. Okay, now after this, Sriman got the bill discounted with the bank for 99,000 on 3rd October, 12%, 3rd October 2018। अरे एकदम सेम ही क्वेश्चन है क्या। देखो, बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच सिरिमन फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, सिरिमन अग्रीड ऑन द कंडीशन 50,000 पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट 12%। एकदम सेम जर्नल एंट्रीज है, सिर्फ अमाउंट्स में डिफरेंस आएगा, ठीक है। मैं गैप दे रहा हूँ, टेबल बनाया हुआ है, पीडीएफ अटैच्ड है, ये आप आराम से खुद कर सकते हो। नया कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है, अमाउंट चेंज, और एकदम सेम टू सेम चीज़ है। देखो 12% इंटरेस्ट है वही, रीता शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल, दीज अरेंजमेंट वर कैरिड आउट बट आफ्टरवर्ड रीता बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40% ऑफ अमाउंट। ये जस्ट अभी हमने किया, ठीक है, May 2018 का क्वेश्चन। November 2019 same as May 2018, exact same, it was exact same, that's why I have not written here, okay. After that, May 2020, what is it saying, check. On 1st January 2018, Akshay draws 2 bills of exchange for 16,000 and 25,000, ठीक है भाई। The bill of exchange for 16,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 25,000 is for 3 months, okay. These bills are accepted by विशाल। अच्छा देखो, ये जो पूरी कहानी है ना, इस पूरी कहानी की एक ही एंट्री होगी, बिकॉज अक्षय इज ड्राइंग द बिल, वी हैव टू पास द नेसेसरी एंट्रीज इन अक्षय's बुक्स। सो लिखो इन द बुक्स ऑफ अक्षय, ओके। 2 bills, सो बिल्स रिसीवेबल, नंबर 1 अकाउंट डेबिट, then bills receivable, number 2 account debit, number 1 was 16,000, number 2 is 25,000, 2 who has accepted, Vishal has accepted, Vishal account 16 to 39,000, ठीक है, एकदम इजी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, on 4th March 2018, okay, this was the date, 1st Jan 2018 Jan 1, now 4th March 4, Vishal request Akshay to renew the first bill, ठीक है, with interest at 15% पर annum। भाई वापस रिन्यूअल ही आया है, तो भाई रिन्यू कर देंगे, और क्या। with interest at 15% for a period of 2 months, see they are talking only to renew the first bill, ठीक है। तो भाई फर्स्ट बिल पहले कैंसिल करना होगा, कैंसिल करो, विशाल अकाउंट डेबिट टू, वापस बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। देखो एकदम आसानी से उठा के इसी को रख देते हैं, टू बिल्स रिसीवेबल। बात समझ में आई क्या। बस ये दिखाने के लिए कि देखो वापस जर्नल एंट्री ओपोजिट ही करनी है हम लोग को, ठीक है। पहले क्या था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विशाल, अब विशाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज वी आर कैंसिलिंग द फर्स्ट बिल। तो भाई अमाउंट कितना था, अमाउंट था 16,000, 16,000। ईजी है, आगे बढ़े, चलो भाई।
उसके बाद क्या बोल रहा है, अक्षय अग्रीड टू दिस प्रपोजल ऑन 25th March 2018. Vishal retires. The acceptance. Okay, first you have to pass the journal entry for the renewal of the bill. No, so नया बिल आ रहा है यहाँ पे, तो लिखो again on the March 4 with interest at 15% for a period of 2 months. So you will write here bills receivable मिलेगा. बिल्स रिसीवेबल अमाउंट में क्या क्या ऐड होगा देखो. 16,000 was the main amount that we will take from Vishal. So to Vishal. So विशाल हमको पहले वो 16,000 रुपीज़ देगा और हम लोग को नया क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है. तो लिखो टू इंटरेस्ट इनकम. आप इंटरेस्ट इनकम भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, या फिर डायरेक्ट इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अच्छा अभी 15% है तो लिखो यहाँ पर 16,000 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई 2 मंथ्स. ठीक है भाई. तो आ जाएगा आपका 15 2 30, 12 का 2.5, तो आ जाएगा आपका टोटल 400 रुपीज़. तो यहाँ पर आपको टोटल बिल कितने का देगा विशाल, 16,400. देखो क्या हुआ, अक्षय को बिल मिल गए थे विशाल से 16,000 के और 25,000 के. जब बिल ड्यू होने लगा तो विशाल ने बोल दिया भाई प्लीज़ रिन्यू कर दो मेरा बिल, मेरे पास तो पैसे नहीं. ठीक है भाई, ठीक है. अब हम लोगों ने विशाल को क्या कहा, हम लोग अक्षय ने विशाल को क्या कहा कि भाई 16,000 रुपीज़ तो तुझे देने होंगे और तुझे इंटरेस्ट भी देना होगा. तो समझो अक्षय के लिए वो 16,000 रुपीज़ का बिल बनाएगा और उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करेगा 16,400. बात समझ में आ गई. इसके बाद देखो, इसके बाद बोल रहा है ऑन 25th March 2018 विशाल रिटायर्स दी एक्सेप्टेंस ऑफ 25,000, द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बिग 250. यानी कि सेकंड बिल के जो रुपए थे 250 वो तो विशाल दे रहा है, एकदम आराम से पैसे दे रहा है. ठीक है. हाँ उसको हम लोगों ने डिस्काउंट दिया 250 रुपीज़ का. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे March 25 बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे रहे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. सेकंड बिल के लिए हम लोग को रुपए मिल रहे हैं तो लिखो यहाँ पे सेकंड बिल और यहाँ पे लिखो बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट 25,000. हाउ मच डिस्काउंट वी आर गिविंग हिम 250. इट मीन्स हाउ मच मनी ही इज गेटिंग अस 24,750. बात समझ में आ गई. आगे बढ़े. देखो ये तो बात होगी March 25 तक. उसके बाद क्या बोल रहा है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल. रिन्यू कब किया था बिल, 4th March 2018 को. ठीक है. अब वहाँ से 2 महीने 4th March से 4th में प्लस 3 डेज तो 7th में. ठीक है. बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, बिफोर द ड्यू डेट विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन अ रुपये कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट. भाई कुछ पैसे बैड डेट होंगे ही, इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसे ही नहीं है. वो बोल रहा है 50 पैसे इन रुपये दूंगा, मतलब जितना भी अमाउंट है उसका 50/100 देगा. 50 पैसे मतलब आधे रुपये मिलेंगे. अरे बात समझे. वही जब आधे ही रुपये मिलने हैं तो फिर लिख देते हैं फटाफट. डेट क्या है, May 7. वो जो बिल्स था नंबर 3 वाला उसको पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा वो तो लिखो यहाँ पे विशाल अकाउंट डेबिट. ये है आपका बिल नंबर 3, विशाल अकाउंट डेबिट 2 बिल रिसीवेबल नंबर 3. कितने का बिल था 16,400. तो ये तो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया. अब May 7 को विशाल हम लोग को पैसे देगा तो लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट. कुछ बैड डेट्स भी होंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू विशाल. कितने रुपए दे लेने थे विशाल से, 16,400. 50% दे रहा है विशाल. 50% ऑफ 16,400 विल बी 8,200. यानी कि बाकी जो बैलेंस बचा दैट इज़ योर बैड डेट 8,200. बात समझ में आ गई. वो पैसे ही नहीं दे रहा तो बैड डेट ही होगा, और क्या होगा. समझे. आगे बढ़े. चलो
नवंबर 2020 एग्जैक्टली सेम एज May 19, कुछ भी नहीं बदला है, फिगर्स भी एकदम सेम है, नाम भी सेम है. जून 2021 इट इज सिमिलर टू नवंबर 2018 वॉट एवर वी हैव जस्ट लर्न. ओके, अरे कतराक वाला देखा था ना अभी क्वेश्चन, एकदम वैसे का वैसा ही है. ठीक है, खाली नाम चेंज किया और कुछ भी चेंज नहीं किया, फिगर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जर्नल एंट्री सबकी एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, बात समझ में आ गई. दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन हियर सेम एज नंबर 18, आई हैव रिटन सिमिलर. सिमिलर इसलिए क्योंकि थोड़ा नाम वगैरह बदले, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट वगैरह बदले, बाकी सेम चीज़ है और कोई डिफरेंस नहीं है उसमें. बात समझ में आई. मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी है, आप ये आराम से खुद कर सकते हो. ठीक है, नवंबर 2018 का क्वेश्चन देखना, मिल जाएगा आपको. अच्छा भाई, दिसंबर 2021 देखो ये क्या बोल रहा है. ये भी वैसा ही है मगर इसमें थोड़ा एक कुछ नई चीज़ें भी हैं. देखो क्या बोलता है. फर्स्ट वाला तो एकदम ही सेम है. देखो, डेविड्स एक्सेप्टेंस, प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डेविड. डेविड्स एक्सेप्टेंस मतलब डेविड ड्रॉ ही था और हमें उसकी बुक्स में लिखना है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्स पेएबल. ठीक है, देखो भाई वो तो ड्रॉ ही है. एक्सेप्टेंस टू सैमुअल फॉर 5000 was discharged by a cash payment of 1000 and a new bill for the balance plus 100 रुपीज़ इंटरेस्ट. ये हम लोगों ने देखा था कतराक वाले क्वेश्चन में, सेम ही चीज़ है. तो क्या लिखोगे भाई, बिल्स पेबल. हम लोग को क्या क्या पेमेंट करना है भाई, देखो एक तो बिल्स पेबल का पेमेंट करना है. कितना पेमेंट करना है, 5000 रुपीज़. ओके, देन वी आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो. हाउ मच इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 100. हाउ आर वी पेइंग द मनी, बाय कैश, to cash payment, sorry, to cash account 1000. It means how much is remaining, 4100. For that 4100 we are giving him the new bill, that's why we are writing bills payable account. क्योंकि हमारे लिए तो लाइबिलिटी है ना, हम तो एक्सेप्ट करेंगे नया बिल. बात समझ में आई. चलो, अभी कोई कोई वापस ये डाउट आएगा, बिल्स पेबल दो बार क्यों आया. नवंबर 2018 वाला वापस जाके देखो. ठीक है, उसमें ये यही क्वेश्चन है. उसके बाद क्या बोल रहे, समंताज एक्सेप्टेंस फॉर 8000 विच वॉज एंडोस्ड बाय डेविड. डेविड, अच्छा समंता ने एक्सेप्टेंस दिया था 8000 के लिए, विच वॉज एंडोस्ड बाय डेविड टू फ्लेक्स. हम लोग डेविड है, ठीक है, हमको समंता से बिल मिला, हम लोगों ने वो बिल फ्लेक्स को दे दिया. नाउ दैट वॉज डिसऑनर्ड. फ्लेक्स पेड 50 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस. नाउ फ्लेक्स ने 50 रुपये नोटिंग चार्जेस दिया. बात समझ में आ गई, और वो बिल भी डिसऑनर हो गया. उसके बाद क्या है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक. एकदम सेम ही सेम आ रहा है. देखो, दिसंबर 2021, जून 2021 एंड नवंबर 2018, ऑल द सम्स आर एग्जैक्टली सेम. ठीक है, सेम स्टोरी है सब में. तो आउट ऑफ 3 वी आर सॉल्विंग द सेकंड वन. ओके, अच्छा देखो क्या लिखोगे इसमें आप, समंताज एक्सेप्टेंस. नाउ वी आर सपोज टू रिसीव मनी फ्रॉम समंता एंड वी हैव टू गिव इट टू फ्लेक्स. सो समंता से पैसे मिलेंगे, सो समंता अकाउंट डेबिट, फ्लेक्स को पैसे देने हैं, सो फ्लेक्स इज आर लाइबिलिटी, फ्लेक्स अकाउंट क्रेडिट. कितने रुपए देने हैं फ्लेक्स को, 8050. तो समंता से हम लोग पैसे लेंगे 8050. बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक. ठीक है भाई, तो फिर हम लोगों ने फ्लेक्स को पेमेंट किया, फ्लेक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितने का बनाएंगे चेक, 8050, 8050. बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़ें क्या. चलो भाई अगला क्या है, Simon retires a bill for 2000 drawn on him by David for 20 रुपीज़ डिस्काउंट. अच्छा, डेविड यानी कि हमने ड्रॉ किया था बिल साइमन पे 2000 रुपीज़ का. साइमन इज सेइंग आई वांट 20 रुपीज़ डिस्काउंट, आई विल मेक द पेमेंट राइट नाउ. सो वी आर गिविंग हिम द डिस्काउंट एंड ही विल मेक द पेमेंट. तो पेमेंट क्या आ जाएगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट. कितना पेमेंट करेगा, 1980. डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसे 20 रुपीज़ का. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000. बात समझ में आ गई. अरे एकदम सेम टू सेम ही है. चलो फोर्थ देखो क्या बोल रहा है, डेविड्स एक्सेप्टेंस टू बिल to Ralph for 20,000 discharged by Ralph Kent acceptance to David for a similar amount. इसमें तो हमेशा फिक्स्ड ही है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही मत. कुछ भी लिखा हो डिस्चार्ज वगैरह अगर सेम टू सेम है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 20,000
20,000। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? हाँ सर, बढ़ो सर, ठीक है सर। जून 2022 क्या बोल रहा है देख। ओह, ये भी वैसा ही एग्जैक्टली सेम ही है, देखो। टू बिल्स 32 एंड 50, वही कहानी है। विशाल रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल, एकदम सेम टू सेम है। अभी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया टू बिल्स वाला, कौन सा था भाई? मई 2020, तो मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। गो एंड रेफर मई 2020, रेफर मई 2020। आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। एकदम सेम टू सेम ही, सेम टू सेम चीज़ें सॉल्व करके क्या मतलब। दिसंबर 2022 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज मई 2018। बात समझ में आ गई? देखो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर चेंज करे तो फिर उसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये शायद तक देखो इसमें क्या है, मई 2018 जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया जहाँ से हमारा सी फाउंडेशन स्टार्ट होता है, मई 2018 में फिगर्स क्या थे देखो। ये लोग ने कितनी कितनी मेहनत की है क्वेश्चन बनाने में, देखो। उस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 लाख की जगह 10,000 है, 98,000 की जगह 9,800 है, और 20,000 की जगह 2,000 है, बस। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को कॉपी कर दिया दिसंबर 2022 में, एक जीरो ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया, नाम चेंज किए हैं सिर्फ, ठीक है। तो जितनी वैरायटी होगी ना, पूरा भरोसा रखना हम लोग सारे के सारे वैरायटी कवर करेंगे। जितने भी वीडियोस अभी तक हमने डाले हैं सीए फाउंडेशन के रिवीजन टेस्ट पेपर्स में, उसमें 70-80% से ज़्यादा चैप्टर कवर हो जाएगा आरटीपीज में। बात समझ में आई? तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सॉल्व कर लेना ये सारे। चलो भाई, ये तो हुआ दिसंबर 2020। अच्छा ये क्या है? ये है हमारा जून 23, हमारा ये वाला करंट अटेम्प्ट। देखो, प्रिया और 5 लाख रुपीज़ टू प्रतीका, ठीक है भाई। पैसे चुकाने हैं प्रतीका को, हाँ भाई पैसे तो चुकाने होंगे। तो फिर प्रिया एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय प्रतीका फॉर द अमाउंट एट 3 मंथ्स। प्रिया एक्सेप्टेड द बिल, अरे भाई किसकी बुक्स में बनाना है पहले ये तो बताओ। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रतीका, अच्छा इट मीन्स इन द बुक्स ऑफ प्रतीका प्रिया एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय प्रतीका, इट मीन्स प्रतीका इज ड्रॉर, प्रिया इज ड्रॉई, वी आर ड्रॉअर, ओके। तो फिर भाई कितने रुपए हैं? प्रिया एक्सेप्टेड अ बिल 1 अक्टूबर में क्या लिखोगे आप? 2022 अक्टूबर 1 बिल्स रिसीवेबल। किसने एक्सेप्ट किया था? प्रिया ने। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रिया। कितने रुपए का? 5 लाख, 5 लाख रुपीस। अरे बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? चलो, उसके बाद क्या है? फॉर 3 मंथ्स, यानी कि ये कब ड्यू होगा? नवंबर 1, दिसंबर 1, जैन 1, यानी कि 4 जैन को होगा, 3 डेज ऑफ ग्रेस मिला के, ठीक है। प्रतीका गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 4,95,000 ऑन 3 अक्टूबर, यानी कि भाई ठीक है अक्टूबर 3 बैंक में जाकर डिस्काउंट करा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 4,95,000 मिले, यानी कि हमने डिस्काउंट कितना दिया भाई? 5,000 का। अरे भाई बिल कितने का दिया हमने बैंक वालों को? हमने बिल दिया है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीज़। तो लिखो यहाँ पे 5 लाख। बात समझ में आई? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ऑन बीइंग अनेबल टू पे द अमाउंट ऑन ड्यू डेट, प्रिया अप्रोच द प्रतीका फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अरे भाई सब में रिन्यूअल ही है क्या? प्रतीका एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 2,50,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। 2,50,000 पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो फिर भाई कैश मिलेगा, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। पहले रिन्यूअल की एंट्री लिखोगे, 4 जनवरी को जब ड्यू हो रहा है तो जैन 4। पहले तो देखो ये वाला जो एंट्री है ना अपने पास, जब भी रिन्यूअल की एंट्री आती है ना, तो पहले वाली जो एंट्री होती है, जब हमने बिल दिया एक्सेप्ट किया, पहले उसको उल्टा कर दो, क्योंकि ये बिल अब वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो एंट्री को उल्टा कर देंगे, प्रिया अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 5 लैक्स, 5 लैक्स, ठीक है। अब हम लोग को जब
नया बिल भी मिलने वाला है और पैसे भी मिलने वाले हैं। पैसे कितने मिलेंगे? 2,50,000। तो लिखो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, पहले प्रिया से इंटरेस्ट लेंगे ना, तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू कर देते हैं। भाई प्रिया से हमें इंटरेस्ट के पैसे भी मिलेंगे। देखो प्रिया से अब दो चीज़ें मिलेंगे, बिल्स रिसीबल के रूप में मिलेंगे और इंटरेस्ट के भी रूप में मिलेंगे। तो प्रिया अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितने रुपए मिलेंगे इंटरेस्ट के लिए? 2,50,000। टोटल अमाउंट वॉज सी 5 लाख। ओके, out of 5 lakh we are taking 2,50,000 right now, so how much is the balance? 2,50,000। अब उसका हम लोग को 10% इंटरेस्ट मिलेगा, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो वो आपका हो जाएगा 6250। इट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी वी हैव टू रिसीव फ्रॉम प्रिया इज हाउ मच? 5,06,250। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? चलो भाई लिखो। उसके बाद आप लोग लिखोगे यहाँ, तो प्रिया ने हमें रुपए दिए, कैश अकाउंट डेबिट, ये सब Jan 4 को ही हो रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000 तो मेन, और 6,250 फॉर इंटरेस्ट, तो 2,56,250। देखो हमने पिछली बार अलग तरह से एंट्री पास की थी, यहाँ पे अलग है। आप कोई भी एंट्री चूज कर सकते हो, सारी की सारी सही है, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ वो दूसरा पहले वाला भी, इंटरेस्ट वाला। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है यहाँ पे। देखो बी टू बैंक, बी टू इंटरेस्ट, देन कैश, बिल्स रिसीबल। बिल्स रिसीबल यहाँ पे नया आया था 2B, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर भी अभी कैश और बिल्स रिसीबल 2, वो जो भी नाम है लड़की का प्रिया, वही लिखने वाले हैं, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, नया बिल मिलने वाला है तो बिल्स रिसीबल, अकाउंट डेबिट टू प्रिया। हाउ मच मनी वी आर सपोज टू रिसीव फ्रॉम प्रिया? 5,06,250। कैश तो क्या क्या मिलेगा? देखो 5 लाख में से 2,50,000 कैश मिल गया, तो 2,50,000 का नया बिल मिलेगा, और 6,250 तो पूरा का पूरा कैश में मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। रिन्यू हो गया, अब नई कहानी आएगी वापस। देखो कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा करेंगे ये लोग। ऑन द रिमेनिंग 10% फॉर 3 months एंड फॉर द बैलेंस, ठीक है। प्रिया शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल एट 3 months। ओके, दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट। ओके, बट आफ्टरवर्ड प्रिया बिकेम इंसॉल्वेंट। अच्छा, एंड 60% ऑफ द अमाउंट वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। अरे भाई इंसॉल्वेंट हो गई, वापस इंसॉल्वेंट जब भी हो जाएगी तो फिर वापस एंट्री लिखोगे, उल्टा करना है उसको। प्रिया अकाउंट डेबिट, ये जो नया बिल दिया है यहाँ पे, ये वापस उल्टा हो जाएगा। एंट्री टू बिल्स रिसीवेबल, कितना है? 2,50,000 और 2,50,000। ये कब होगा? 7 मार्च को, 7 मार्च, ठीक है। क्योंकि 2 महीने के लिए, Jan 4 से Feb 4, Feb 4 से March 4, March 4 से 3 दिन ग्रेस के, उल्टा कर दिया। अब उसके बाद आपको पेमेंट मिलने वाला है कितना? 60%। तो लिखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रिया। प्रिया का कितना है? 2,50,000। 60% रुपीज़ मिलने वाले हैं, तो 1,50,000। क्या करना है? 2,50,000 को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 60% से, और बाकी रुपए तो बैड डेट। बात हो गई ख़त्म। बस इतना सही था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बात समझ में आई? ये सारे आरटीपी थे। आरटीपी में जो भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है वो हमने सॉल्व नहीं किया, मैंने उसके लिए स्पेस दिया है। प्रिंट ले लेना, अच्छे से लिखना, जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी लिखी हुई है, सिर्फ फिगर्स का फ़र्क आएगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बात समझ में आ गई? और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।